You are listening to the Special Needs Children podcast with Chitra Iyer. Chitra Iyer is a parent of 23-year-old Shravan Iyer who has epilepsy, cerebral palsy and autism. She is the CEO of MFA and has been helping families with life-centered planning to reach their personal financial goals. She is also a trustee of a parent support group, the Forum for Autism, which was set up almost 2 decades ago. MFA is a 17-year-old organization working in the personal finance space. They have set up a dedicated practice to help families with special needs children to plan their financial goals and invest for them. The thoughts shared here are as a result of discussions with parents, caregivers, siblings, and professionals regarding the planning of a person with special needs. They have set up a dedicated practice to help families with special needs children to plan their financial goals and invest for the same. The thoughts shared here are as a result of discussions with parents, caregivers, siblings, and professionals regarding the planning of a person with special needs. In this expert series podcast, Chitra is talking to Anjali Dada, mother to 20-year-old DJ and the founder of SOCH, Autism Society of Punjab, Jalandhar. SOCH is an NGO which provides regular and consistent support to parents of special needs children. Listen to her in conversation with Chitra Iyer, where she shares her thoughts on future planning for children with autism as they become adults. Hi everyone. A big warm welcome to you on this expert series of my podcast for special needs children. Thank you, Anjali, for your time and agreeing to do this interview with me. Thank you, Chitra, for this opportunity. Yeah, I'm so happy that you're here and we're finally going to be able to do this and educate and try to make more and more people aware about what your journey and all journey of various parents has been. So just to introduce you formally to our listeners, Miss Anjali Dada is the founder and president of SOCH, which is the Autism Society of Punjab. That's in Jalandhar. She's a special educator with specialization in autism spectrum disorders. She's a mother to a very blissful 20-year-old Dhananjay, whom we will hear about much more when she shares. She set up the first of its kind NGO in Punjab in 2008, which is SOCH. It is an NGO which provides regular and consistent support to parents. She has helped in creating various programs like the Mother-Child Training Program, vocational trainings, and others. The NGO has been able to train and guide 500 plus families from across India and the world. She has been actively involved in various workshops, trainings, campaigns related to autism awareness and has also received various awards and recognitions for the excellent work she has been doing in this field. Thank you so much, Anjali, and I want to hear so much about you, and therefore I'm diving straight into the first question. Can you please share your journey of living with autism with your son? Thank you so much, Chitra. What a lovely introduction you've given. And I love this opportunity because, you called upon me to do something that I really love doing. So as for my journey with my son, Dhananjay, or DJ as we call him, I'm sure, Chitra, you know what I'm talking about when I say that it started with denial, a lot of denial. We were unwilling to accept that something like this had come into our life, which was in the year of 2005. And post that, we were very lucky that we found very good mentors, specifically speaking, as in, Mary Barua and Indrani Basu. We found people like them who started to guide us with a very positive outlook. So post that, the journey flipped around. Once we began to accept that this is DJ's unique way of existing, that this is who DJ is, and we chose very actively to, or rather we decided
that we would be very determined in celebrating life. So that is something that we did initially. And सुनने में तो शायद बहुत आसान लगता है, but वो एक बहुत लंबा process था. And then finally, to tell you a little bit that, it's the minute we made that decision, I think our journey became a very fruitful journey. So DJ is now 20 years old, like you told everybody who's listening. And he's a young man with great self-esteem. He believes he's one of the most handsome, men around. He compares himself to Hrithik Roshan all the time, which was sweet. Yes, because we were very conscious about like a typical माँ बाप होते हैं जो अपने लाडले बेटे को सबसे ज्यादा सुंदर ही समझते हैं. So I think we said so much of it that he truly believes it now. But other than that, he's a very loving young man. He is confident about a lot of things he does and enjoys music. Loves to write emails to his friends. And जो हमारी जर्नी रही है, obviously in 20 सालों में, या आप कह सकते हैं जो 17 सालों में हमने जब से हमें पता लगा है, उतार चढ़ाव बहुत आए हैं. We have faced our difficult times when our family together, I feel, entered that time of puberty, जो डीजे के लिए तो बहुत मुश्किल था ही, लेकिन हमारे लिए भी काफी चैलेंजिंग रहा. एक टाइम रहा जब हमने एक्सेप्टेंस को एक नए नजरिए से देखा, अपनी लाइफ को एक नए नजरिए से देखा. बट ओवरऑल ये जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है, चित्रा. आई वुड नॉट do anything over if I look back. And simply because we have celebrated every little victory. We have cried over every little difficult moment also that we have had, but we've done it together. So I think all I would say is that alag rahi hai, badi interesting rahi hai, and badi simple bhi rahi hai. Thanks to DJ, who's brought about a very simple way of thinking and living amongst all of us in our home. That's absolutely lovely. Really, really lovely, अंजलि. तो आपकी लाइफ में सोच के बारे में आपने कभी सोचा, और आज सोच क्या क्या करता है, एंड आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं सेंटर के लिए? सोच naturally जब we realize that अब हमें वापस जलंधर ही आना है पोस्ट आवर ट्रेनिंग इन दिल्ली. we also realized कि यहाँ पे अगर हमने डीजे को उस तरह से ट्रेन तो हम नहीं कहेंगे, बट उसकी अपब्रिंगिंग हमें अच्छी और खुशहाल रखनी है, then we would really have to create something like that, because उस टाइम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं था, स्पेशली जिनको ऑटिज्म की नॉलेज हो. एंड आई फील कि जो हमारे ऑटिज्म के यंग एडल्ट्स या बच्चे हैं, उनको एक डेफिनेटली एक स्पेसिफिक तरीका चाहिए होता है जीने का, समझने का. एंड दैट वाज एब्सोल्युटली मिसिंग हियर. इनफैक्ट पहले 2-3 साल में तो हमें किसी स्कूल ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, मेन स्ट्रीम स्कूल ने भी. सो ऑटोमेटिकली एक रियलिटी सेट इन हुई कि अब अगर बच्चे को आगे किसी तरह से चलाना है तो शायद खुद ही कुछ बनाना पड़ेगा. So we got a little group together. We started working out of my garage. We really hunted and looked and found like-minded people who were willing to, understand autism and create that unique environment जिसमें हमारे बच्चे कितना thrive करते हैं. So Soch started from our garage and slowly went on to a small center. It started with just one program at that time. That was the mother training program. बिकॉज हमें कुछ एजुकेटर्स नहीं मिल रहे थे जो ऑटिज्म में ट्रेंड हो, तो हमने सोचा बेस्ट थिंग ऐसा रहेगा कि हम अपने जैसे और पेरेंट्स को ट्रेन करें, एंड देन वी कैन क्रिएट अ लवली ग्रुप, एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड. Started with a mother child training program, and then slowly progressed on to other classrooms, progressed on to a vocational room. Again, like if we look at Soch, I would say हमारे बच्चे हमारे गाइड रहे हैं. Because it was as they started to grow big in Soch, they began to show us कि उनकी क्या-क्या ज़रूरतें होने वाली हैं. So the vocational room again came about because we realized that now we need to create a lovely work room that in which they can, put out everything that they are good in.
and give them a working environment, look forward towards a regular pay schedule and things like that. जो हमारा वोकेशनल रूम था, आई थिंक उसने हमें भी इतना सरप्राइज किया, बिकॉज हमारे बच्चे इतने परफेक्शनिस्ट हैं, इतने ब्यूटिफुली काम करते हैं, दैट द प्रोडक्ट्स वर इमीडिएटली लव्ड बाय एवरीबडी अराउंड and were immediately they became a favorite in the city and the neighboring area. So you can say almost in the state we started to get support from, you know, in the industrialists and educational houses who wanted these for their gifting. So that was quite a surprise for us. And in fact वहाँ पे एक बहुत अच्छी सी चीज जो शायद हम सोच में हमेशा बोलते हैं कि सोच है तो क्षमता है, पर अब तक हम सिर्फ अपने बच्चों की क्षमता की तरफ देख रहे थे. आई थिंक हमारे आसपास के लोगों में भी बहुत क्षमता है प्यार की एंड सपोर्ट की. दे कैन अपलिफ्ट अस इफ वी लेट देम. सो दैट द वोकेशनल रूम प्रूव टू बी एग्जैक्टली दैट. एंड पोस्ट दैट ऑब्वियसली जैसे आपने मेंशन किया चित्रा, लॉट्स ऑफ अवेयरनेस. ये हमारा एक टारगेट रहा है दैट जैसे हमने फेस किया था जब हमने शुरुआत की थी कि किसी को ऑटिज्म का नाम तक नहीं पता था. ये हमने इतनी बात करनी है, हमने ये डिसाइड किया था अपनी जर्नी में कि हर एक इंसान को एटलीस्ट जलंधर में ऑटिज्म का नाम जरूर पता रहे. एंड आई थिंक वी हैव अचीव दैट टू क्वाइट एन एक्सटेंट, दैट इट इज अ वेरी कॉमन नेम नाउ, बिकॉज दैट एसेंशियली इज व्हाट builds towards an inclusive society. तो हम youngsters से schools में जाके अपने volunteer programs में बहुत बात करते हैं, so that especially the generation that's coming in can take this on in a newer way. हमारे campaigns बहुत fun campaigns रहते हैं, so that and we really focus on involving the citizens of Jalandhar. So definitely हमारी autism community तो इसका एक बहुत important भाग रहती है, but that is the time we feel that the citizens can come in, have a lot of fun, and actually understand a lot about autism. So वो सोच आप कह लीजिए यहाँ तक पहुंची है, and आगे हम इसी तरह चलना चाहते हैं. हम अपने vocational rooms को और strong करना चाहते हैं, and definitely कुछ we want to introduce some new programs here. And definitely want to continue in this spirit, जहाँ पे ये एक अब एक family बन गई है सोच, and it's like a safe haven for parents as well as the young people with autism. So हमारा vision यही है, and let's see आगे हमें क्या रहा हमारे बच्चे दिखाते हैं जहाँ पे हम चलेंगे. So we are looking forward to that. That's brilliant, Anjali. You've actually managed to touch so many lives. जहाँ पर कुछ नहीं था वहाँ पर आपने ये निर्माण किया. आपने कितने कितने सारे फैमिलीज को आज तक हेल्प किया है और आप फ्यूचर में भी हेल्प करना चाहती हैं. तो फ्यूचर प्लान के बारे में मुझे ये पूछना था कि आपने डीजे के बारे में क्या सोचा है, डीजे के लिए क्या सोचा है, उसके लिए आपने एक सही समय पर सोचा रहेगा कि हमें अब से उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है, वो क्या करेगा. ये तो फिर आपके लिए क्या विजन है? व्हाट डू यू हैव, व्हाट इज द विजन दैट यू हैव फॉर योर चाइल्ड विथ व्हेन यू आर अलाइव एंड व्हेन यू नो ही डजंट हैव यू अराउंड? आपने क्या सोचा है? Yes, so I think चित्रा ये सवाल मेरे था तो हमेशा दिमाग में, बट हमें हमेशा जब तक हमारे बच्चे टीनेज ईयर्स को नहीं टच करते हमें लगता है बहुत टाइम है. We have all the time in the world and we can do this planning anytime. But I think somewhere when we start beginning to understand that adulthood अब काफी नजदीक आ गया है, and that time of school and everything also starts to finish away. I think around that time when he stepped into his teens, मैंने और अनुज ने, मेरे हस्बैंड ने काफी सोचना शुरू कर दिया था कि अब हम डीजे के लिए आगे क्या करने वाले हैं. We were very clear from day one that we would like him to be in a very nice, living home. And हम चाहते थे एक बड़ा यूनिक टाइप का हमें इसके लिए हमेशा एक होम मिले. एंड उसके लिए उसके साथ साथ ये चीज भी बहुत घूमती थी दिमाग में, दैट इसकी फ्यूचर सिक्योर रहे. एंड अगेन लाइक आई हैड मेंशन्ड अर्लियर, जब मैं आपसे बात कर रही थी, आई थिंक वी हैड ब्रिलियंट गाइड्स. So Chitra, please allow me to, give you the credit here that I don't know 2020 शायद हमारे लिए अच्छा ही रहा, because
kahin se we both got in touch, you know. And 2020, obviously DJ had just turned 18, and that minute itself hame ye laga ki ab he's an adult aur ab deri nahi karni. And we have to figure out pehle wo rahega kahan pe, and uske liye hum apni फाइनेंशियल एसेट्स को, अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे स्ट्रीमलाइन करेंगे. एंड तब मैंने देखा था कहीं पे कि आप एक ऐसी वर्कशॉप कर रही थी, एंड मुझे ये भी याद है मैंने आपको कितना हाउंड किया था कि आप हमारे पेरेंट्स के लिए ये कीजिए, बिकॉज कहीं पे मेरे को ये भी एक क्लैरिटी है कि हम अकेले नहीं चल सकते. अगर आज हम डीजे के लिए करते हैं और हमारे आसपास के बाकी पेरेंट्स भी सोच में ये करते हैं, तो हम कहीं पे इकट्ठे बहुत सिक्योर होने वाले हैं. सो आई वांटेड दैट, ऑब्वियसली मेरी पहली जो वर्कशॉप थी वो मैंने आप ही के साथ MFA के साथ अटेंड की थी. मेरी फैमिली साथ में थी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स हमेशा बहुत सपोर्टिव रहे हैं, मेरे इन लॉज बहुत सपोर्टिव रहे हैं. सो इनफैक्ट हम लोग सब बहुत कीनली वी वर टेकिंग डाउन द नोट्स. बट उसी टाइम हमने एक मेंटल नोट ये कर लिया था, दैट वी मेड अ मेंटल नोट दैट हम आगे जाके ये सोच के पेरेंट्स के साथ भी जरूर करेंगे एक ये फाइनेंशियल, बिकॉज द क्लैरिटी वी गॉट एट दैट पॉइंट. सो ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग वी स्टार्टेड डूइंग वाज थिंकिंग दैट हमारी सबकी विल्स एक ट्रैक पे होनी चाहिए, सो दैट वी नो कि जितने एसेट्स हैं वो स्ट्रीमलाइंड है. वो प्रोसेस हमने आई थिंक 2021 में शुरू किया है. एंड टाइम लगता है इन सब चीजों को, बिकॉज कोविड के कारण वैसे भी बहुत सी चीजें स्लो थी. हम खुद भी थोड़े से डरे हुए थे बाहर निकलने को. एंड सो आई थिंक वो इतना फास्ट नहीं हो पाया हाउ मच आई वुड हैव लाइक्ड इट टू बी. बट वो अर्जेंसी अब भी मेरे दिमाग में है. वी हैव ऑलरेडी, हम उसके लिए एक ट्रस्ट बना रहे हैं. एंड अगेन थैंक्स टू यू हमें काफी क्लैरिटी मिली उसी हिसाब से कि हम ये ट्रस्ट कैसे फ्रेम करेंगे. एंड हमने सब मेंबर्स से बात कर ली है हु वी थिंक विल बी द पोटेंशियल ट्रस्टीज फॉर डीजेस ट्रस्ट. हमने अपने फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड किया है. एंड उसके बाद उनको थोड़ा सा अप्रेज कर दिया है कि ये इसके साथ कैसे चलेगा. हमारे दिमाग में एक और चीज चल रही है, वो ये है कि हम ये ट्रस्ट अभी इसी साल या अगले साल तक पूरी तरह फाइनलाइज करना चाहते हैं, सो दैट इसकी फंक्शनिंग हमारे सामने हो सके. वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, जो आप कह लीजिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उनको दी है, एंड हम अपनी होते होते जो चेंजेस लाने वाले हैं वो कर सके. इनफैक्ट ये अर्जेंसी मेरे में और तब आई जब हमारी पूरी फैमिली को कोविड हुआ. 1 by 1 हम सब हॉस्पिटल में एडमिट हुए. एंड तब मुझे लगा दैट अब तो एवरीथिंग इज सो अनसर्टन अराउंड अस, एंड ऑल्सो अक्रॉस इंडिया, बिकॉज उस टाइम हमारा नेटवर्क कितना क्लोज हो गया था चित्रा. वी वर ऑल सो मच इन टच विद ईच अदर. आई गॉट टू नो दैट देयर आर सो मेनी tragedies that have happened in a young person's life with autism, who may have lost parents or something. So I am genuinely saying डर लगा, बहुत ज़्यादा डर लगा. I was very very scared, and so that is the thing. For this we have also started one more endeavor, that हम यहाँ जलंधर में ही किसी तरह जो हमारा एक वो गवर्नमेंट assessment and diagnosis of autism होता है, वो यहाँ पे होना शुरू हो जाए. बिकॉज वो हमारे बहुत कम पेरेंट्स के पास था, एंड इनफैक्ट हमारे पास भी नहीं था. हमें चंडीगढ़ या अमृतसर ट्रैवल करना पड़ता है, which is about 2.5 hours away, and a lot of people put it off. A lot of the government hospitals also curtailed their working during this time, during the last 2 years. So I realized that it's best कि वो एक चीज अगर हम अपनी सिटी में शुरू कर सके तो it will be really great, for which we are trying to work with the government institute in Jalandhar, so that वो हो जाएगा. So then the people in charge in the civil hospital can immediately give us that government approved autism certificate, UDID card. Yeah, UDID card, and also all the other the formalities, because वो हमें यहाँ पे शुरू करनी है. We don't want कि हमारे parents को travel करना पड़े. So that is one thing we have started to work towards, and with that then we hope that सब लोग इस रास्ते पे आएंगे जहाँ पे वो सोचना शुरू करेंगे that yes,
अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें, अपने एसेट्स को स्ट्रीमलाइन करें, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करें, बिकॉज इस वक्त दिस इज the most secure way of securing their future. That's what I have begun to understand. And also, of course, ye process I've realized is not very easy. Like, this is something I'd like to tell everyone about. Again, like I was mentioning, there is a government body involved here, जिनके साथ हमें, काफी काम करना पड़ता है टू गेट दैट वन सर्टिफिकेट, द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो हमें बनवाना पड़ेगा. इट इज ऑनलाइन अवेलेबल, बट उसके पहले जो हमें एक दो चीजें चाहिए वो रेडिली हर सेक्टर में अवेलेबल होनी चाहिए. एंड देन ऑफ कोर्स मूविंग फॉरवर्ड, दैट इफ वी आर वरीड, आई थिंक बेस्ट थिंग इज टू टेक एक्शन. So that's what we started at our end. We started towards very concrete steps of his financial security. Because we are clear, अब वो 20 साल का है and we are aware that अभी तक तो वो अपने finances नहीं handle कर पाता, and वो नहीं कर पाएगा. He will not be able to streamline that for himself. So we have to do it for him. And especially, in the last few months, in fact, I think our family had a meeting in March, and can you believe it, कि March के बाद one by one we've had an emergency with in both the families. DJ's grandmothers, maternal and paternal, both have had slight emergencies. One has had a surgery, one has had a heart attack. So again, process bilkul stop ho gaya tha for a few months. So I just like to tell, all the parents who may be listening in today, that like me, if you're worried, I think we need to start this yesterday. So we need to start this immediately. There are lots and lots of there's lots and lots of help out here. Like, I would definitely recommend Chitra's name right away, not just because we are, known to each other, but because I have got such clarity from those detailed webinars that you did do. So if you all are in any kind of areas, I think you all can get groups together and request them for a webinar. And they're so sweet. They did it for free for us. So that was really wonderful, So this is where we are right now, Chitra. Thank you so much, Anjali. फ्री में करने का तो it's been that हर एक को पकड़ के बोलूं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए करने के लिए. हर एक पेरेंट की ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये करें अपने बच्चे के लिए. एंड व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट द वे यू हैव अप्रोच्ड इट इज, आपने अपने पूरे फैमिली को इन्वॉल्व किया. सबको पता है कि क्या क्या करना ज़रूरी है. आपने पूरी मीटिंग्स ली, आपने सबको बिठाया, आपने सबको समझाया कि ट्रस्ट बनाना ज़रूरी है. और आपने ये एक्सेप्ट किया है. बहुत लोगों को ये डिफ़िकल्ट होता है ये समझने में कि नहीं आगे जाके वो कर पाएगा, whereas अगर आपने ये जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मुझे उसको सिक्योर करना ही है, तो उसके लिए मैं आज क्या करूं. आपने इतना बड़ा चैलेंज लिया है कि जहां आपके पूरे सिटी में, वो शहर में है ही नहीं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का आपके हॉस्पिटल में, तो आप वो वहां पर आप पूरा अरेंज कर रहे हैं ताकि नॉट ओनली यू बट ऑल द पेरेंट्स बेनिफिट फ्रॉम इट, विच इज हैट्स ऑफ टू यू दैट यू डूइंग दिस. एंड एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आने के बाद लीगल गार्डियनशिप करना ज़रूरी है हर एक पेरेंट के लिए कि जब अपना बच्चा 18 साल का हो जाता है तो हमको खुद को लीगल गार्डियंस करके अपॉइंट करना ज़रूरी है. देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व्ड, उसके बाद आता है विल, उसके बाद आती है ट्रस्ट, उसके बाद आता है लेटर ऑफ इंटेंट बनाना, उसके बाद आता है कि ट्रस्ट को तो बना दिया है, उसमें पैसा डालो, उसको फिर इन्वेस्ट करो. और जैसे आपने बोला, when I am alive, I want to see and I want to train the trustees कि मुझे क्या चाहिए मेरे बच्चे के लिए. आपने इस पैसे को किस तरह से मैनेज करना है ताकि उसका लाइफ एकदम हैप्पी गुजरे, और उसके लिए मैं सब कुछ करना चाहती हूँ. तो ये आपने बहुत अच्छे से बताया अंजलि, एंड आई होप पीपल अंडरस्टूड द अर्जेंसी जो आपने कहा कि ये जल्दी कीजिए, कल करने का काम था, ये येस्टरडे का था, आज का नहीं है कि टुमारो का नहीं है, बहुत जल्दी शुरुआत कीजिए.
है ना? Yes, absolutely. And in fact, जो आप बात कह रहे हैं that even if you have siblings, because हमने जब इनके साथ चित्रा जी के साथ हमने यहाँ पे एक ग्रुप सेशन किया था अपने पेरेंट्स के साथ, so I was making it very clear and luckily हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं यहाँ सोच में, आपके पास भी होंगी वहाँ मुंबई में चित्रा, जहाँ पे अब सिबलिंग्स बड़े हैं और अपने करियर में निकल पड़े हैं, तो हम उनको अपने बच्चों के साथ एक जगह पे बाइंड नहीं कर सकते. सो देयर वर अ फ्यू पेरेंट्स जिन्होंने मुझे कहा था कि हमारे तो सिबलिंग है, हमें क्या जरूरत. बट जैसे उन्होंने बड़े सिबलिंग्स को देखा तो उन्होंने रियलाइज किया दैट दे आर ऑलरेडी नाउ इन देयर करियर्स एंड दे now actually they will be moving forward and ahead and maybe out of the cities, out of the country, some of them. So it is very, very important that आपके इस बच्चे का फ्यूचर सिक्योर रहे. एंड डेफिनेटली आई थिंक वो ही हमें गाइड कर रहे हैं, वो ही हमें बता रहे हैं व्हाट दे नीड इन लाइफ. सो वी हैव टू लिसन, उनके सिग्नल्स लेना बहुत जरूरी है. सो राइट नाउ वी नीड टू सिक्योर दिस. आई थिंक दैट्स इट. एब्सोल्युटली, बहुत अच्छे से बोला आपने. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर या और कोई जैसे हमारे फील्ड में लोग हैं, उनका आपने अभी तक हेल्प लिया है क्या? आपको किसी ने गाइड किया है कि या आपको लगता है कि मैं ये खुद से कर सकती हूँ? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? नो चित्रा, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट डूइंग इट माई सेल्फ. इनफैक्ट मैं जैसे दोबारा दोहरा रही हूँ दैट इट वॉज सो अमेजिंग कि मैंने सोचा और मुझे आप मिल गई. सो आपने मुझे कितना मेरी थॉट्स को स्ट्रीमलाइन किया है, आपने हमें एक ब्लूप्रिंट दिया है. एंड एज फॉर फाइनेंशियल गाइडेंस, हमने अभी तक हम सिर्फ इस रास्ते तक चल पड़े हैं अभी तक दैट हमने आप कह लीजिए सॉर्ट ऑफ हमने असेसमेंट शुरू कर दिए हैं हमारे पास, हमारी फैमिली के पास. लाइक फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर, माई मदर, ऑल ऑफ अस, हम सब बैठ के अपनी विल्स की तरफ चल रहे हैं इस वक्त. फॉर विच डेफिनेटली हम यहाँ पे हमारे कुछ लोकल कंसल्टेंट्स हैं, नॉट कंसल्टेंट बट आप कह लीजिए फैमिली के जो गाइड्स रहे दिस मैटर, बिकॉज कुछ विल्स पहले की भी थी, उनको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं. एंड ऑल दोज थिंग्स जिसमें हम चाहते हैं कि ये चीजें बड़ी क्लियरली डल जाएं दैट हमारे बाद ये सब एसेट्स कहाँ जा रहे हैं, एज इन डीजे की ट्रस्ट को जा रहे हैं. एंड मेरी सिस्टर एक सिंगल वुमन है, मतलब कि डीजे की जो मासी है, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं अपना सब कुछ इसको छोड़ के जाना चाहती हूँ. सो वो भी सेफली उधर ट्रांसफर हो एंड वो सब हाउ टू प्रोटेक्ट इट. तो ये विल्स बनाई जा रही हैं. सो हम इस वक्त वहां पे हैं. बट एवरीबडी इन द फैमिली राइट नाउ हैज द नंबर फॉर चित्रा एंड MFA. सो दैट at any point, like अभी हम obviously trust की तरफ नहीं पहुंच पाए हैं, but like I said, steps तो चल पड़े हैं. And at any time, and anybody in the family also, like my father has taken the number, my mother-in-law has taken the number, my husband's sister has taken their number, so that हमें जहाँ guidance की जरूरत होगी, we know that we have experts in the field, genuinely speaking, who are in the field, like Chitra and everyone. So that is how we are working right now. So I think हम थोड़ा अभी behind the steps, अभी हम उसी step पे हैं जैसे I told you कि इस वक्त हमारा सर्टिफिकेट बन रहा है एंड इसी वक्त हमारा जो वो है हमारी विल्स का काम हो रहा है इस वक्त. करेक्ट. सो अंजलि, जब ये सब बातें चल रही है ना, तभी एज अ पेरेंट आपको ये भी सोचना पड़ता है कि मेरा बच्चा 10 साल में क्या करेगा, 20 साल में क्या करेगा, कहाँ रहेगा, 30 साल में कहाँ रहेगा, और फिर उसकी 60 की उम्र में, उसकी 70 की उम्र में वो क्या करेगा. क्या आप इस तरह के डिस्कशंस करते हैं? क्या आपने इसके बारे में अपने हस्बैंड के साथ बात की है, अपने पेरेंट्स के साथ, जो भी है, जो भी इन्वॉल्व है, उनके साथ आपने क्या कुछ सोचा है? हैव यू गॉन ऑन दैट पाथ ऑफ इसका फ्यूचर क्या है? बिकॉज अगर वो क्लैरिटी आ गई ना, तो फिर फाइनेंशियल प्लानिंग करना भी इजी हो जाता है. बट इस तरह के डिस्कशंस क्या आपने शुरू की हैं? बिल्कुल, हमने इनफैक्ट पिछले साल, दैट इज इन 2021, हमने काफी रिसर्च भी की.
विजिट्स भी की टू सी कि हमारी कंट्री में इस वक्त व्हाट आर द एग्जिस्टिंग सेफ मॉडल्स फॉर आवर चिल्ड्रन. एंड बिकॉज हम इस बात पे भी बहुत क्लियर हैं कि डीजे इंडिपेंडेंट है एज इन अपनी सेल्फ केयर में, एंड काफी हद तक बहुत चीजें खुद कर लेता है, बट ही विल ऑलवेज नीड अ प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट. हम इस चीज पे भी बहुत क्लियर हो चुके हैं. And for that matter, we have already started talks over here with the center that we found that would be probably the best suited for him. And also that we are very open to, what is coming up for him in the future. So we are very clear about that. And we also want that future में जो, these living facilities that we are talking about, अगर ये भी किसी तरह ये सोचें, how can they be a part of these trusts? Because they too will have to somehow figure this out, because members तो होते ही हैं हमारे private trust के, जो डीजे की प्राइवेट ट्रस्ट रहेगी उसके तो मेंबर्स होंगे ही, बट कहीं पे अगर वो ऑर्गेनाइजेशंस भी इसका पार्ट बन सके, जो ऑफ कोर्स हो सकता है. सो आई थिंक जो द ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग आउट देयर, they need to start also thinking about this. कैसे we can support parents who have sound trust, because end of the day तो बच्चे उन्हीं के पास हैं. So that is something that I had thought of, and मैंने ये सोचा भी था कि आपके साथ डिस्कस करूंगी sometime in the future. चित्रा, बिल्कुल सही बोला आपने कि जो रेसिडेंशियल फैसिलिटी का जो ट्रस्ट है वो आपके प्राइवेट ट्रस्ट में एक ट्रस्टी बन के रह सकता है. सो दैट इज अ सीमलेस वे का, जहाँ पर आपने डिसाइड किया आपके जो 2 फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड हैं वो बाकी के जो 2 ट्रस्टीज हैं, और एक ट्रस्टी ये भी हो सकते हैं जहाँ पर उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो पैसा है ये इस बच्चे के लिए है, इसका पूरा फ्यूचर जो है, वेदर इट इज फॉर हिज हेल्थ नीड्स और फॉर हिज ट्रैवल और फॉर हिज एजुकेशन और फॉर स्टे, सबके लिए जॉइंट डिसीजन करके हो सकता है. आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन इट वेरी कॉन्क्रीटली हियर. मुंबई में भी हमारे ये सब प्लान्स चल रहे हैं, एंड होपफुली वी शुड बी एबल टू शेयर इट विथ द रेस्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो. अनदर क्वेश्चन टू यू, लास्ट क्वेश्चन राधा अंजलि, आप अपने सुनने वालों को क्या बोलना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर फ्यूचर प्लानिंग या फ्यूचर फाइनेंशियल रिलेटेड जो प्लानिंग है उसके बारे में अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप अपने लिसनर्स को बताना चाहेंगे, तो आपका एडवाइस क्या है टू अ पेरेंट, टू अ सिबलिंग, या फिर एक्सटेंडेड वेल विशर्स? कितने दोस्त रहते हैं ना, वो भी पूछते हैं आप क्या करने वाले हो, कि तो आप इन सबको क्या बोलना चाहेंगे? I think, Chitra, that सबसे important thing is just to start immediately. And, that हम, like again, everything, every aspect of this is very important. बट शुरुआत करनी बहुत जरूरी है. एंड आई ऑल्सो फील दिस वन थिंग, जो मैंने चित्रा से ही एक बारी पहले सुना था इनके एक्सपीरियंस से, कि अपने होते होते इसको शुरू करना ताकि हम इसकी वर्किंग देख सकें. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसी चीज पे हमारा आधे से ज्यादा, आप कह लीजिए कि हमारा सारा फिक्र या हमारी एंजाइटी उसी चीज से शुरू होती है, हमारा स्ट्रेस. So that according to me is the first step, because आप शुरुआत करेंगे तो आपको राह और रास्ता मिलता जाएगा. शायद आप अपने तरीके से इस चीज को बनाएंगे, अपने ट्रस्ट को, आप फाइनेंशियल प्लानिंग अपने तरीके से करेंगे, बट वो शुरुआत करना बड़ा जरूरी है. उन लोगों से, अपने आसपास वाले लोगों से जो लोग इन्वेस्टेड हैं, जैसे चित्रा कह रही थी, कुछ दोस्त या कुछ फैमिली मेंबर्स जो लोग इस हमारे बच्चे में इन्वेस्टेड हैं, उनके साथ बात करना is super important. I think it's just the start. That's very important, Chitra. Thank you so much for that, Anjali, because जिस तरह से आपने बोला ना, लोग डर जाते हैं, कभी कभी बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, कभी सोचते हैं कि इसके लिए मैं टाइम कहाँ से निकालूं, ये भी और एक एडिशनल चीज़ आ गई है मेरे सर पे. लेकिन जब तक आपने पहला कदम उठाया नहीं ना, वो आगे बढ़ने ही नहीं वाला है. सच में परफेक्ट बोला आपने. टेक द फर्स्ट स्टेप, जस्ट जंप इनटू इट. और लोग हैं
चित्रा, मैं एक और बात यहाँ ऐड इन करना चाहती हूँ. चित्रा ने बिल्कुल सही बोला दैट बड़ा ओवरवेलमिंग इसलिए होता है बिकॉज शुरुआत कहाँ से करे और इतना ज्यादा एक्स्ट्रा काम. वो हमें भी फील हुआ था बिकॉज मैं सोच चलाती हूँ और मुझे लगा मैं एक सोसाइटी ऑलरेडी चला रही हूँ, अब एक और ट्रस्ट करूंगी. बट डेफिनेटली एक चीज दैट आई ऑल्सो वांट टू पुट अक्रॉस इज कि यही तो उम्र है जब सब लोग अपने बच्चों के लिए एक्चुअली फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं. बिकॉज मेरे जितने दोस्त हैं इस वक्त वो अपने आसपास अपने बच्चों के लिए इस वक्त बिजनेस सेटअप कर रहे हैं या आगे का सोच रहे हैं, उनका कॉलेज है, तो ऑल दैट इज स्टार्टिंग एट द सेम टाइम. सो हम भी वही कर रहे हैं, हमारा रास्ता थोड़ा अलग है. हम एग्जैक्टली वही चीज कर रहे हैं जो बाहर बाकी लोग कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए की थी. ब्यूटिफुल, कितने अच्छी तरह से आपने बोला हो, बिकॉज सब लोग इसी बोट में हैं. बहुत अच्छे से बोला. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी. एंड आपने जिस तरह से सिंगल हैंडेडली सब शुरू किया, ऑफकोर्स आपने बहुत अच्छी तरह से एक कम्युनिटी अप्रोच लिया है. बहुत सारे दोस्त आपके साथ जुड़ गए हैं. हम आपके बारे में बहुत वी रीड सो मच एंड इट फील्स सो इंस्पायरिंग दैट आप जालंधर में इतना सब कुछ कर रहे हैं सोच को लेके. एंड आपके साथ मैं आई जस्ट प्रे दैट मेनी मोर पीपल जॉइन यू एंड आपका हाथ और बढ़ाएं और स्ट्रेंथन करें. विशिंग दैट all the planning that you've done for DJ. Thank you so much for sharing that how your family has rallied around him, rallied around you. And I think it's sheer your enthusiasm, Anjali, that completely झलकती है आपकी आवाज से. And I appreciate that आपने इतने अच्छे तरह से ये सब शेयर किया इतने छोटे से समय में. And I hope a lot of people listen to this podcast, understand your thoughts and the efforts that need to go out, for a better future for our children. Thank you so much. Genuinely appreciate this. Thank you so much. Thank you so much, Chitra. And all the feelings are reciprocated. So much love going your way right now. And thank you. And lots of love to everyone out there. We can do this. And thank you to Chitra for getting us all started on this. Thank you so much. Thank you, dear. Thank you. You were listening to the Special Needs Children podcast with Chitra Iyer, the CEO of MFA and a trustee with the Forum for Autism. If you find this podcast relevant and interesting, it will be great if you leave a review, share, like, and subscribe. You can also let us know if there is any specific topic that you would like us to cover. Feel free to email her on chitra.iyer@myfinad.com or you can call her on 9833 85892. That is 9833 85892.